Okay, so today we will look at Luke chapter 16 verses 19 to 31. Luke में 19वां अध्याय नहीं 16वां अध्याय 19 से 31 तक हम लोग देखेंगे. Okay. Okay, each one of us will read one verse each. एक वचन पढ़ेंगे लेकिन जोर से पढ़ेंगे because there are people online who should also hear what you're reading. All of us will follow in the Bible that we have, okay, so that there is continuity. I will be taking the study interactively, asking questions so you can answer and we can learn together, okay. We will start with Sister Deepthi and go towards Joanna and so on and so forth. Luke 16, 19 to 31. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And the poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And thinking on this experience, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his womb. Then he cried and said, Father, have mercy on me, and Lazarus, that he may taste the tip of his finger, and fill my tongue, for I am thirsty to see. But Abraham said, Child, remember that in your lifetime to eat the good, and Lazarus in like manner bad. But now he is comforted and well. हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार हमारे पास जाना चाहे वे न जा सकते और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास जा सकते. When we spend by taking that to our Father, and we और I have five brothers, let him walk in so that they will not also come to this place of torment. अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. But he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise and die dead. Okay. So we are going to look at this passage. It is about something that happens to all of us. हम सबके जीवन में जो घटना होने वाला है, मृत्यु आने वाला ही है हर व्यक्ति का जीवन में. ओके, हमारे परिवार में भी हमको मृत्यु देखने को मिलेगा, हमारे दोस्तों के बीच में भी मृत्यु देखने को मिलेगा. पूरा संसार मृत्यु से व्हाट टू से देयर इज लॉट ऑफ डेथ के लिए अराउंड अस. बहुत सारी मृत्यु हमारे आसपास होता रहता है. ओके, वी कीप सीइंग डेथ, ओके, अराउंड अस. दिस पैसेज इज दिस नरेटिव इज uttered by our Lord Jesus Christ so that we can learn something about life, death and life after death. यीशु मसीह ने इस how do you put it, narrative के लिए, it's not कहानी, ये कथा भी नहीं, कथन. अच्छा, ये इन कतरों से खतरा हो गया उसमें. ओके, इन बातों के द्वारा. एक मिनट तो आ रहा है.
इस कथन से हमें ये बताना चाहता है कि इंसान का जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद में क्या होता है, ये हमें समझने के लिए बताया है। दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। हम सबको इन बातों के बारे में जानकारी होने के लिए बहुत इच्छा रहता है अंदर। वी आर वेरी ईगर टू नो व्हाट हैपेंस आगे किसी दिनों में या सालों में या जो कुछ भी है, हमें भी उस रास्ते से गुजरना है। वी नीड टू पास थ्रू दैट एरिया, सो वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली when we die and in the life beyond the grave. Okay, so this narrative also, इस कथन में भी 3 भाग हम लोग देख सकते हैं। There are 3 parts. One is life on this earth. Okay, then what happens at death, मृत्यु के समय क्या होता है, जीवन के समय क्या होता है, जीवित है हम तभी क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, और मृत्यु के बाद में क्या होता है। ओके, द 3 parts. ओके, what happens to us when we are living, what happens to us when we die, and what happens to us after death. Okay, so Jesus gave an insight into all these things through this narrative. इस कथन से यीशु मसीह हमें बताया क्या हो रहा है करके। ओके, सो लुक इनटू द बाइबल। परमेश्वर का वचन में से बता सकते हैं हम लोग कितने लोगों के बारे में इस कथन में बताया गया है। हाउ मेनी पीपल आर मेंशन्ड एंड हु आर दे? मेनली 2 लोगों के लिए, एक धनवान मनुष्य था और एक बहुत गरीब था, और जिसके घाव थे, जिसके घावों को कुत्ते चाटते थे। ओके, one rich man and one poor man. Okay, other than that, who else is mentioned? They are also important part of the narrative. Abraham, okay, rich man's family, his brothers, उसके भाई लोग, ये धनवान व्यक्ति का भाई लोग, और इब्राहिम के बारे में बताया। और किसी के बारे में बताया? Moses and the other prophets, मूसा और बाकी नबियों के बारे में भी कुछ तो शब्द में उन लोग जो लिखा है उसके बारे में बताया गया है। सो दिस पैसेज इज ऑल अबाउट डिफरेंट पीपल हु लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में जो जिए हुए यानी जी के जो मर चुके हैं उनके बारे में इस कथन है। ओके, सो फ्रॉम दिस नैरेटिव व्हाट कैन वी नो अबाउट द रिच मैन when he was alive? So we'll look at it in 3 parts. Okay, when he was alive, वो जब भी जीवित था तभी इस दुनिया में इन 2 व्यक्तियों के बारे में पहला देखेंगे, धनवान और वो गरीब व्यक्ति। धनवान व्यक्ति के बारे में क्या बताया इसमें? He led a lavish life. उसको क्या बोलेगा? बहुत आराम और अच्छा जीवन उसने जिया, और किसी बात की कमी घटी नहीं थी। ओके, उसको कुछ कमी घटी नहीं थी। ओके, he was very rich. There was no shortages in his life. He had everything that he wanted. Then और कुछ बताया? हाँ, पर्पल कपड़े में वो पर्पल कपड़ा पहना था। पर्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, आप समझ लिया। ओके, so he was in purple clothes. This was a cloth that only the rich people wore, and the material of his cloth is also mentioned. That is malmal. Okay, linen. Okay, we don't have linen clothes. In those days, it was difficult to make linen clothes. So he was having linen, and that also purple. So he was a very rich man. Anything else we know about this rich man? धूमधाम के साथ, रोज धूमधाम के साथ। Okay, रोज धूमधाम के साथ रहता था। Every day he had a lavish lifestyle. What else? He was concerned about the present life. इस समय के बारे में वो चिंतित था, बाकी आगे क्या होगा उसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। और loudly. He was wasting food because from what fell from his table, the poor man was able to eat his food and survive.
इससे एक सोचना भी है, हम लोग भी खाना वेस्ट करते हैं क्या? Do we waste food in our lives? No? See, it may not necessarily be कि when he is eating, lot of food is falling. It means so much of, we last, I think Sunday before last, we were in the Alpha One Mall. Alpha One Mall गया था हम लोग, तो वहाँ पे थोड़ा नाश्ता के लिए हम लोग बैठा. We sat there for food. तो ऑन द टेबल नेक्स्ट टू अस, हमारे मेज के बगल के मेज में जो एक छोटा ग्रुप बैठा था, उन लोग काफी सारा चीज ऑर्डर किया. ऑर्डर करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा खा के बाकी सब छोड़ के गए. तो धनवान व्यक्तियों को पैसे और खाना का मूल्य भी समझता नहीं. दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस. मेनी टाइम्स चिल्ड्रन ऑल्सो हैव दैट एटीट्यूड. देयर पेरेंट्स कुक फूड with great difficulty, when they start earning they will know. उन लोग जब भी कमाने चालू करते हैं ना, तो उनको समझ में आएगा कितना दर्द के साथ उन लोग पैसा खर्चा करके खाना खरीदता है. जब भी छोटे हैं तभी ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये छोड़ देने का, ये फेंक देने का, ये सब आदत रहता है. ओके, सो हम लोग ये दोनों व्यक्ति के बारे में क्यों देखते हैं? ताकि हमें समझे कि हमारे में भी उस तरह का कुछ गुण चलेगा, कमी या गुण है क्या नहीं, वो भी हम सोच सकते हैं. ओके, वी कैन थिंक अबाउट दैट. एनीथिंग एल्स? इस व्यक्ति का नाम क्या था? हाँ, नाम बताया नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस मैन्स नेम. ओके, दुनिया में लोग उसके बारे में क्या बोला रहेगा? इस व्यक्ति के बारे में उसको प्रिविलेज है. प्रिविलेज यानी नसीबवान व्यक्ति था वो. परमेश्वर ने उसके लिए क्या बोलता है? अच्छी जिंदगी दिया, उसको ब्लेस किया. उसको क्या बोलता है? तो आशीष है, बहुत आशीष दिया है, परमेश्वर ने दिया है. ऐसा वो लोग सोचेंगे. हम लोग भी सोचते हैं ना कभी कभी. ये अडानी अंबानी या कुछ धनवान के बारे में हम लोग देखते हैं, या उन लोग कैसा जीते हैं, वो देखने के बाद हमको भी लगता है हमारे पास भी थोड़ा पैसा ज्यादा रहेगा तो हम भी थोड़ा चैन से और क्या बोलते हैं, विद कंफर्ट को क्या बोलते हैं, आराम के साथ हम लोग, हमारा जीवन भी जाएगा, हम लोग सोचते हैं. तो लेकिन परमेश्वर का वचन में उसका नाम भी बताया नहीं है. ओके, हम लोग देखेंगे बाद में क्यों उसका नाम बताया नहीं है और क्यों वो गरीब भिखारी का नाम बताया गया है. उसका नाम क्या था गरीब का? लाजर था. लाजर का मतलब क्या है मालूम है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाजर? रेचल, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू अगेन. मीन्स गॉड हेल्प, परमेश्वर मदद करता है मुझे. ओके, तो उससे क्या मालूम पड़ेगा आपको लाजर के बारे में? परमेश्वर उसके नाम से जानता है. वो गॉडली था क्या उसका? हाँ, उसका पेरेंट्स यानी उसको क्या बोलता है? पेरेंट्स क्या बोलते हैं? माता पिता उसका बहुत धार्मिक थे. ओके, दे वर गुड, दे हैड अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, सो दे नेम्ड हिम दिस. ओके, व्हाट एल्स वी नो अबाउट दैट पुअर पर्सन? उसके बारे में, इस गरीब व्यक्ति के बारे में हम क्या पता कर सकते हैं? कवर्ड विथ सोर्स, उसके शरीर में घाव, बहुत घाव था. कभी घाव बढ़ते जाता है जब आपको दवा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहता है, तो वो बढ़ते जाता है. तो यहाँ पे ये भी बताया कि उसका घाव को चाटने के लिए कुत्ते भी आते थे. डॉग्स केम टू लिक दोस थिंग्स. ओके, व्हाट एल्स वी नो अबाउट दिस पुअर मैन? उसके पास खाने तक के पैसे नहीं, उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था. और क्या पता चलता है? हाँ, उसका गेट के बगल में, उस धनवान व्यक्ति का घर के जो गेट है, उसके फाटक के बाजू में ही वो, उसको क्या किया जाता था? लोग छोड़ के जाते थे, यानी वो खुद से चल भी नहीं सकता था. हम लोग इस प्रकार का एक व्यक्ति के बारे में क्या बोलेंगे? दुनिया में हम देखते हैं ना, गरीब अमीर सबको देखते हैं. As a young person, I wanted to become like the rich.
नो वन वांट्स टू बिकम लाइक दैट पुअर पर्सन ना। हम लोग भी जब भी तरुण रहते हैं ना, तभी हमें भी ऐसा लगता है कि ये धनवान अमीर लोगों जैसा हमारा जीवन रहना चाहिए। कोई भी ऐसा चाहता नहीं कि मेरा जीवन कठिन और संकट के साथ गुजरना चाहिए। वी नेवर थिंक दैट वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, येट दैट वाज हिज लाइफस्टाइल। ओके, हम लोग यही देखते हैं दुनिया में भी, दो प्रकार के लोग, जिसके पास सब कुछ है और शायद उसके पास कुछ ना, वो कुछ पढ़ा भी रहेगा, कुछ नहीं कह रहेगा, लेकिन उसके पास धन और दौलत सब कुछ है। और ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, दवा के लिए भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं है, मुसीबत से दिन का दिन जीवित रहते हैं उन लोग। ओके, एवरी डे दे लिव अकॉर्डिंग टू दैट डे, दे कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर। ही वॉज सिक एंड ही हैड टू बी कैरीड एंड ब्रॉट टू दैट प्लेस। ओके, नाउ ये दोनों व्यक्ति के बारे में क्या इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? वार्तालाप। ओके, क्या वार्तालाप होता था ये दोनों के बीच में? क्योंकि मरने के बाद बहुत कुछ होता है। वार्तालाप तो जीवित था, when they were alive, what was the interaction between these two people? Nothing is mentioned, कुछ भी बताया नहीं है, यानी कुछ होता भी नहीं रहेगा, कुछ वार्तालाप नहीं होता रहेगा। पीपल मे नॉट, दीज टू मे नॉट हैव बीन इंटरेक्टिंग। किसका जवाबदारी था बात करने का? रिच मैन, क्योंकि गरीब तो जाके बात करेगा तो उसको हकल देगा वो। लेकिन ये धनवान व्यक्ति जो था, वो कुछ कोशिश नहीं कर रहा था वो उस गरीब व्यक्ति के साथ बात करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, उसका संकट में उसको मदद करने के लिए, कुछ नहीं। उसका वो एकदम स्वार्थ व्यक्ति था, खुद के बारे में सोचता था। उसके पास ज्यादा था, लेकिन वो ज्यादा में से भी कुछ देता नहीं था। ओके, दैट वाज द कंडीशन। So our life also, when we look here on earth, we should not get tempted by what we see in others. हम लोग भी दूसरों का धन और दौलत देख के हम लोग प्रभावित होना नहीं चाहिए। We should not get tempted or attracted or influenced by what is seen in other people and feel bad about what we are. Okay, because God's word has given us a glimpse of what happens at death and what happens beyond death, so that we can understand the ultimate consequence of our life on earth. परमेश्वर का वचन में हमें आगे जो होता है, जो किसी व्यक्ति ने देखा नहीं है लेकिन परमेश्वर को मालूम है, उस चीज के बारे में बताया, ताकि हमें हर चीज, हर व्यक्ति का आगे जाके क्या होने वाला है वो समझ सकते हैं, और क्यों ऐसा होने वाला है वो भी समझ सकते हैं। ओके, अभी हम वो बीच में का भाग में आएंगे। वील कम टू दैट मिडिल पार्ट। एट डेथ, मृत्यु के समय क्या हुआ दोनों को? Backbenchers, otherwise you will have to come to the front. Come to the front. Jeremiah, come to this seat. And you also come next to me. There's nothing to watch on the TV except yourself. Yeah, sit. Now no backbenchers, all I can see directly. Next time, so all the shorter ones should come to the front. Huh? Taller ones like John Joseph will sit at the back. Bolo. You all have to answer, huh? All of you have to answer. It is simple, no? Simple narratives which Jesus has told so that we all can understand. Bolo. Angels came to carry Lazarus. स्वर्गदूत आए, दोनों व्यक्ति मर गया। समय आया ऐसा परमेश्वर का वचन में, मरने का समय आया, तभी दोनों व्यक्ति मर गए। और स्वर्गदूत आके इस गरीब व्यक्ति जो भीख मांगता था उसको ले चला। कहां पे ले चला? इब्राहिम का बोसम, उसको क्या बोलते हैं? इब्राहिम का बोध में ले चला। ओके, इब्राहिम कौन था? ओनली शी नोस। Now you will keep quiet. You are a teacher, but you have to keep quiet now. You are students, but other students you have to give chance. Yeah, Rachel. Who is Abraham? सबको मालूम है, नहीं है? मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए बताना है। Who is Abraham? जोर से, इसमें भी सुनना है। बोलो बोलो।
जॉन राइचस मैन, अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, पुराना नियम के समय में जीता था। हम लोग अभी 2000 साल यीशु मसीह के आने के बाद जीते हैं, और इब्राहिम 2000 साल पहला जिया था इस धरती में। धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ उसका अच्छा रिश्ता हुआ, क्योंकि वो खुद का धार्मिकता पे विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है उसके बारे में वो विश्वास किया। हाउ गॉड मेक्स पीपल राइचस, दैट वाज ऑफ कंसर्न टू हिम, एंड ही सरेंडर्ड टू दैट गॉड। वो इस परमेश्वर को उसका जीवन समर्पित किया उसने। ओके, सो एक चीज हमें मालूम पड़ता है इससे कि मरने के बाद 2 जगह है, तीसरा जगह के बारे में कुछ बताया नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। 2 ही जगह है, एक जगह जहाँ पे धार्मिक लोग रहते हैं, जाते हैं, और दूसरा जगह जहाँ पे अधार्मिक लोग जाते हैं। ओके, व्हाट डू वी नो अबाउट दीज 2 प्लेसेस बाय लुकिंग एट दैट प्लेस? एंजल्स टुक Lazarus to that place। वो गरीब व्यक्ति या जो भीख मांगता था उसको स्वर्गदूत उसको उस जगह पे लेके गया, लेकिन वो धनवान व्यक्ति को क्या हुआ? जोर से बोलो। He was tormented। ओके, इधर ही हुआ। हाँ, ओके, he was tormented। ओके, तो वो बहुत मुसीबत में था। तो 2 जगह है, और 2 जगह के सिवा तीसरा जगह नहीं है। तो मरने के बाद या तो जहाँ पे एब्राहम, लाजरस ये लोग है, वेयर एब्राहम एंड लाजरस आर, वी विल बी गोइंग, और वी विल बी गोइंग टू द प्लेस वेयर दिस रिच मैन वेंट। वन प्लेस देयर वाज कंफर्ट। कंफर्ट को क्या बोलते हैं? आराम। आराम, आराम नहीं, इज इट आराम? शांति, जो भी है सब कुछ था। और वो उसका जीवन में बहुत तकलीफ हुआ था ना, जब वो इस दुनिया में था। उसका भी, उसको क्या बोलेगा, आई कांट एक्सप्रेस इट इन हिंदी। ओके, एनीवे, तो वो पीड़ा में नहीं था, लेकिन ओके, वेयर द अदर पर्सन वाज। तो देयर इज अ डिफरेंस ये दोनों जगह के बारे में। और ये दोनों जगह के बारे में और कुछ इब्राहिम बताता है। वो क्या बताता है? बड़ा खाई है दोनों के बीच में। लोग जो मुसीबत में है, उन लोग जहां पे इब्राहिम और लाजरस है वहां पे नहीं आ सकते। पीपल हु आर इन द फायर, ओके, दोज हु आर इन सफरिंग, दोज हु आर इन पेन, कैन नॉट कम टू वेयर इब्राहिम इज, वेयर ही इज कंफर्टेड। ना कि इब्राहिम या लाजरस वहां पे जा नहीं सकता है। ओके, तो मरने के बाद ये एक चीज हमें समझना है कि हमारा जो कंडीशन है वो अनंत काल के लिए सील्ड है। सील्ड को क्या बोलते हैं? मोहर बंद। ओके, अनंत काल के लिए मुद्रित है ना। आपका कंडीशन उधर ही रहेगा, बाद में बदलने वाला नहीं है। ओके, योर कंडीशन विल नॉट चेंज आफ्टर दैट। यू कैन नॉट गो टू द अदर प्लेस। आप दूसरा जगह में जा ही नहीं सकता है अनंत काल के लिए। तो ये हमें समझ में आता है कि जैसा हम लोग जिया इस दुनिया में, हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका परिणाम हमें आनंद काल के लिए भुगतना पड़ेगा। We can understand from this that whatever we are going through the process in life, okay, whatever we believe, whatever we do has consequences for eternity, and that consequence cannot be changed। Okay, it is sealed forever, कायम के लिए, आनंद काल के लिए, बाद में बदल नहीं सकता है। उसी जगह पे आपको रहना पड़ेगा। ओके, अभी ये दोनों व्यक्ति मरने के बाद जहां पे थे वहां पे शरीरी रीति से थे, वर दे फिजिकली देयर?
नहीं, what was there? What do you tell for soul? आत्मा। ये दोनों मरे हुए लोगों का आत्मा वहां पे गया था। ओके, धरती में उनका शरीर गाड़ दिया था। ओके, लेकिन उनका आत्मा ये दो जगह में रह सकता है। ओके, वी कैन कीप दैट इन माइंड। ओके, तो इस व्यक्ति, ये अमीर व्यक्ति क्या विनंती करता है? व्हाट रिक्वेस्ट ही मेक्स टू इब्राहिम। और वो क्यों इब्राहिम को पूछता है? लाजरस को क्यों सीधी सीधी बोलता नहीं पानी लेके आओ या कुछ और? हाँ, ये लगा होगा कि मैंने इसके साथ बुरा किया, शायद ये भी बुरा करेगा। अभी दो थप्पड़ मारे। Okay, he may not feel comfortable even asking, because when in earth he had everything, he did not give anything to him. Now he cannot ask Abraham. Abraham तो बड़ा व्यक्ति है ना, Abraham को कुछ पूछ नहीं सकता है। तो वो बोलता है कि Abraham को आप लाजरस को बोलो उंगली पानी में डुबा के एक बूंद पानी एटलीस्ट मेरा जीभ में लगा देना, ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ, ठंडक होगा, ये मुश्किल से मैं थोड़ा तो बच सकता हूं करके। ओके, ये उसका रिक्वेस्ट था। क्या करता है इब्राहिम? व्हाट डज इब्राहिम डू जर्मन? ही सेंड्स अ ग्लास ऑफ वाटर। Thank you, and I with the period good and after it back likewise now you that ओके, बहुत ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ही नरेटेड इट वेरी करेक्टली है। ऑन अर्थ यू रिसीव गलत, यू रिसीव योर गुड थिंग। हाँ, डोंट मिस दैट वर्ड, एवरी वर्ड, हर शब्द इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन में। अच्छा चीज मिला करके परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है इस दुनिया में, लेकिन जो वो धनवान सोचता था अच्छा है, वो सब चीज उसको मिल गया। ओके, और जो वो धनवान व्यक्ति सोचता था कि अच्छा नहीं है, वो चीज सब किसके पास गया? लाजरस के पास गया। So in life, many times our desires are for things that will not be of any good to us. God knows what is good and what is not good. Okay, but this man had an idea कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, और वो जो उसका मन में लगा कि ये अच्छा है, उसके पीछे ही वो लगा हुआ था, पूरा जिंदगी उसमें बिताया। और अभी मरने के बाद उसको बोला जा रहा है कि जो तू चाहा कि अच्छा चीज है, वो चीज तो सब कुछ तेरे को मिल गया वहां पे, तू जो चाहता था वो मिल गया, लेकिन जो चीज जरूरत था वो तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज व्हाट अब्राहम टोल्ड हिम। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो उसके मरने के बाद के बारे में भी थोड़ा सोचने चालू कर दिया, लेकिन एक चीज और देखना, यहाँ पे उस गरीब व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा गया है कि स्वर्गदूत आके उसको लेके गया। वो अमीर व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? ऐसा कुछ डाला है? नहीं है। ही वॉज बरीड, उसको गाड़ा गया था। ओके, अमीरों का दफन करने के समय क्या होता है? बहुत बड़ा खर्चे का प्रोग्राम हो जाता है, बराबर ना? ये गरीब व्यक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ हुआ भी नहीं रहेगा। शायद उधर का जो भी म्युनिसिपैलिटी था आके उसका शरीर को लेके जाके जो कुछ करने का था वो कर दिया, लोग आया नहीं रहेगा, कौन जाता है गरीब के पास? ओके, लेकिन अमीर के घर में तो बहुत बड़ा गर्दी हुआ रहेगा। हम लोग भी वही करते हैं ना, कोई मर गया तो क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा चीज, पूरा जिंदगी भर उसको गाली बिली दिया रहेगा, लेकिन मरने के बाद क्या करते हैं हम लोग? कितना अच्छा आदमी था, है ना? माता पिता के साथ झगड़ा करते रहेंगे या पत्नी के साथ झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन मरने के बाद कितना अच्छा व्यक्ति था ऐसा बोलेगा। क्योंकि वी
we make a show of how we appreciated the person and their contribution after their death. Okay, whereas in lifetime we may have ignored them and treated them very badly and even spoken bad words against them. Okay, so this rich man had got lot of, maybe his funeral में many people would have stood up and said, और गर्दी भी बहुत आया रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी उसका संपत्ति का बंटवारा होगा ना, तो सबको उसका भाग तो चाहिए, उसका मुफ्त में मिलता है तो कौन छोड़ेगा? ओके, तो उसका जो दूर दूर का भी रिश्तेदार लोग आया रहेगा, कितना अच्छा आदमी था बोलने के लिए। ओके, लेकिन वो जो गरीब था उसके पीछे कोई नहीं आया रहेगा, इसीलिए उसका दफन होने के बारे में बताया नहीं है। जो चीज आनंद काल के लिए महत्वपूर्ण है वो चीज हमें बताया है। कौन सा चीज? कि उसको एक स्वर्गदूत उसको जहां पे जाना है उस जगह पे लेके गए। ओके, तो आगे और क्या दोनों के बीच में बात चलता है दोनों जगह के और उससे क्या समझ में आता है अपने को? हाँ, दोनों जगह के बीच में बहुत बड़ा खाई है। ओके, वो ब्रदर बता दिया, दोनों इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। और क्या आप समझ सकते हैं? दो तीन चीज मरने के बाद के बारे में आप समझ सकते हैं। जॉन कुछ बोलने वाला था, जोर से। There is no sword. Otherwise you have to come in front, talk on the mic. हाँ And you are on the left. There is sword on his body. हाँ। It is perfect. हाँ, यहाँ पे दुनिया में जब भी था उसका बहुत घाव और सब कुछ था उसके शरीर में, लेकिन यहाँ पे उसका घाव के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उसको वो अच्छा हो चुका है अभी। ओके, Even हाँ dip his finger and release water. हाँ, वो धनवान व्यक्ति भी बोलता है लाजरस को उंगली पानी में डुबा के मेरे जीभ में रखना करके, जीभ को ठंडा करने के लिए बोलो करके। अगर उसका शरीर में अभी वो सब घाव भी रहेगा तो करेगा ऐसा? ऐसा पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। So that is very good. There was a change that took place also in them. Then और क्या समझ में आता है? मरने के बाद पहचान सकते हैं ना। यहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे नहीं आ सकता है, लेकिन दोनों को एक दूसरा देख सकता है और पहचान भी सकता है। They can recognize. Not only that, इस अमीर व्यक्ति इब्राहिम को पहचान लिया। इब्राहिम 2000 साल पहले जी रहा था, लेकिन उसको भी पहचान लिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि मरने के बाद हम एक दूसरे को पहचानने वाला है। वर्ल्डली लाइफ को भी याद रखा है। हाँ, उसको दुनिया के बारे में भी याद दिलाया गया। इब्राहिम उसको याद दिलाया, स्मरण करो करके बोला, रिमेम्बर, याद करो आपको कैसा था दुनिया में, तो याद कर सकता था, हर चीज याद रहेगा। अपने परिवार के बारे में भी जानता था कि मेरा हाँ, भाई है, उसको 5 भाई है वो भी याद आया, सब कुछ याद आया। और क्या आप सीख सकते हैं इसमें? कि मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। वॉट एवर वी कैन डू वी मस्ट डू व्हेन वी आर अलाइव। उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। उसको जीवित में तक कुछ हाँ, यहाँ पे वो धनवान व्यक्ति उसका गाड़ी का एक्सीडेंट होएगा तो भी पैसा देके दबा दिया रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर को पैसा देके छूट सकता है? कितना पैसा देगा वो? और परमेश्वर लेगा उससे? नहीं लेगा। वॉट एवर वॉज रॉन्ग ही मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड ऑन अर्थ। दुनिया में जो कुछ गलत था सब कुछ किया रहेगा, लेकिन यहाँ पे आके उसको क्या समझ में आ रहेगा? ना धन, ना दौलत, ना शरीरी, उसका शरीर बहुत अच्छा था ना, तंदुरुस्त था वो, कुछ भी आनंद काल के लिए कुछ मतलब नहीं था उसमें। ओके, देयर वाज नो बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ इट। ओके, देन उसको उसके भाई लोग के बारे में भी उसको चिंता आने लगा। मेरा भाई लोग, उसको क्या बोलते हैं, ये परिस्थिति में मेरे भाई लोग 5 भाई लोग भी मरेंगे
तो कहाँ पे जाएगा? लाजरस जिधर था उधर नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहां पे ही आने वाला है उन लोग भी। उसको समझ, आनंद काल में क्या होता है क्या नहीं होगा वो सब समझ में आ गया। अभी क्या गलती उसने दुनिया में किया था वो समझ में आ गया। ही अंडरस्टूड what was lacking in his life when he lived on earth. Okay, and he was confident, उसको एकदम 100% मालूम था कि उसके भाई लोग भी मरेंगे। तो वो जहां पे था उस पीड़ा में और दर्द वाला जगह में, आग के जगह में, वहां पे ही वो आने वाला है। मैं नरक शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो बाद में आने वाला है। दिस इज अ टेम्पररी प्लेस। ओके, उसने ये भी समझा कि जब वो जो बच्चों की पुस्तकें हमारे पास थी तब मैंने भी नहीं माना और मेरे भाई भी नहीं मान रहे, हाँ लेकिन जब कोई सब से जाएगा कोई तब शायद मान लेंगे। मान सकते। ओके, तो उसको ये था कि जब भी इब्राहिम बोलता है कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारे पास बाइबल है ना, जो मूसा ने लिखा और बाकी भविष्यवक्ताओं ने लिखा वो तो तुम्हारे घर में है। ओके, तुम्हारे भाई लोग के पास भी है लेकिन वो पढ़ते नहीं है, इसीलिए वो समझते नहीं है। ओके, लेकिन इब्राहिम बोला कि मैं किसी को यहां से, इस जगह से दोबारा इस दुनिया में, धरती में भेज नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट सेंड पीपल बैक ऑन टू अर्थ। ओके, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि मैंने इसका भूत देखा, उसका क्या देखा, लेकिन वो एक इंसान नहीं वापिस आ सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है अपने को। ओके, तो इस धनवान व्यक्ति बोलता है कि लेकिन मरने के बाद कोई दोबारा दुनिया में गया तो मेरे भाई लोग शायद मान लेंगे। यानी वो क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन है वो ठीक है, लेकिन कुछ चमत्कार देखेगा उन लोग, और ऐसा चमत्कार जैसा जो होता ही नहीं। क्या नहीं होता है हमको मालूम है कि जो मरता है वो कभी वापस दुनिया में नहीं आता है, ये तो हमें ठीक ठाक से पता है। ओके, तो बोलता है कि मरने के बाद अगर लाजरस दोबारा गया तो मेरे भाई लोग विश्वास करने चालू करेंगे। तो इब्राहिम क्या बोलता है, अगर उन लोग मूसा और नबियों को विश्वास नहीं किया तो उनसे कोई चला यहाँ से कोई जाएगा तो भी वो विश्वास नहीं करने वाला। तो आप भी आपके जीवन में कुछ चमत्कार का इंतजार में मत जीना। चमत्कार से कोई परमेश्वर को विश्वास नहीं किया है। ओके, पीपल पुट देयर ट्रस्ट इन गॉड ओनली व्हेन दे रीड हिज वर्ड, अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इट इन देयर लाइफ। परमेश्वर का वचन पढ़ के, समझ के, अपना जीवन में उसका प्रभाव होने के लिए देते हैं, तभी उनका जीवन बदलता है और उनका पाप का माफी होता है। ओके, if they don't listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. ये परमेश्वर ने बताया। और सचमुच में यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जीवित उठा। कितने लोग विश्वास करते हैं अभी दुनिया में? काफी सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन काफी सारे लोग सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। Many of us listen to it and don't let that information change us. यीशु मसीह का मृत्यु क्यों हुआ? Why did Jesus die? For our sins, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह दिया। ओके, का ये मृत्यु हुआ और पुनरुत्थान ना, उनका पुनरुत्थान हुआ। ओके, दोबारा जीवित हुआ हमारे पापों के लिए। ओके, ही बिकेम आवर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं? हमारे बदले में उसने अपनी जान दी। हमारे बदले में वो जान दिया। पाप का दंड मृत्यु है, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, पाप का दंड। इस दुनिया में कौन है व्यक्ति जो पापी नहीं है? बहुत धार्मिक लोग है इधर, कोई नहीं। जो बाबा लोग है और जो कोई भी बोलता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन वो सब व्यक्ति पापी है।
सोच में पापी है, कार्य में पापी है। वी आर सिनर्स इन आवर थॉट एंड इन आवर डीड, वी आर सिनर्स। ओके। और जैसा हमारे पास जो काम करते हैं हम ऑफिस में या स्कूल में या जहाँ पे भी फैक्ट्री में, तो उसके लिए हमें पगार मिलता है। हम जो काम करते हैं उसके लिए पगार मिलता है। वैसे ही पाप का पगार क्या है? मौत है। ओके। मौत का मतलब आनंद काल के लिए परमेश्वर से दूर होना। एक तो शरीरी मौत है जो दुनिया में हो जाएगा, लेकिन आनंद काल के लिए परमेश्वर के साथ आपको कुछ रिश्ता नहीं होगा। उसको वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, भयानक है, सबसे ज्यादा भयानक है। और यीशु मसीह इसी कारण से आया ताकि हमारे जगह में उसका मृत्यु हुआ। वो हमारे पाप उसके ऊपर, खुद के ऊपर ले लिया, और पाप के लिए जो दंड है वो खुद सह लिया। ओके। तो वो इंसान जैसा नहीं है जो मरने के बाद जी उठ नहीं सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर भी था। ओके। पूरा परमेश्वर था, परमेश्वर 100% परमेश्वर था, तो वो जीवित उठा मरने के बाद। पाप के लिए उसने पाप का दंड सह लिया और जीवित भी उठा। और अभी हम लोग उस पर विश्वास करेंगे तो क्या होने वाला है? हम भी जीवित रहेंगे आनंद काल के लिए। इफ वी पुट आवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही डाइड फॉर आवर सिंस, वी विल ऑल्सो बिकम अलाइव इन हिम फॉर इटर्निटी। Those who are alive, those who are alive because of what Jesus has done are called righteous in the Bible. Okay? ऐसे ही लोगों को धार्मिक बोला जाता है जो अपना जीवन को परमेश्वर के पास समर्पित करते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि उसका मृत्यु मेरा पाप के लिए था करके विश्वास करने के बाद हमें परमेश्वर धार्मिक बोलता है। गॉड कॉल्स अस एज राइचियस। दुनिया में हम लोग बोलता रहेगा कि हम धार्मिक है, हम धार्मिक है, हम अच्छे आदमी है, बोला रहेगा, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि आपका पाप का दंड मृत्यु ही है। एक छोटा ये बताता हूं। समझो हमारे घर में जो काम करता है, वो एक दिन बहुत गुस्से में घर में एक व्यक्ति को मार डालता है ना? kills someone, my wife or daughter or mother, whoever it may be, किसी को मार डालता है। और मैं घर में नहीं है तभी, तो मैं घर में आता है तभी वो घर चकाचक साफ करके रखता है, अच्छा खाना पका के रखता है, या सब कुछ जगह पे जहाँ पे रहना चाहिए सब रखा, और चाय बना के दिया मैं अंदर आने का टाइम, तो क्या उसका पाप उसको मैं माफ कर दूंगा? नहीं कर सकता। ओके। इसी प्रकार से दिस इज हाउ इट इज व्हेन वी हु आर सिनिंग, हम जो पाप करते हैं, हम कुछ कुछ अच्छा चीज कर भी देते हैं, लेकिन वो अच्छा परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं बोला जाएगा। ओके। जस्ट लाइक द सर्वेंट, वॉट एवर गुड शी डज विल नॉट कवर द रॉन्ग शी हैज डन इन माय हार्ट। वैसे परमेश्वर के नजर में हम कितना भी अच्छा करेंगे तो हमारे पाप को वो कवर नहीं कर सकता, झांक नहीं सकता है, झांकेगा नहीं। तो हमें सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर कि वो मेरे जगह पे उसका मृत्यु हुआ, और उस पर विश्वास करने से मेरा पाप का दंड उसने भर लिया है, तो इसीलिए मैं जा सकता है। जैसा आपको एक पुलिस पकड़ा और 1000 रुपया का दंड लगाया क्योंकि आपने कुछ तो गलत जगह में पार्किंग किया या कुछ भी किया, आपके पास पैसा नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति बाजू में खड़ा है, वो बोलता है कि मैं आपका दंड भर देता हूं, तो पुलिसमैन तो ले ही लेगा ना और आपको छोड़ देगा। इसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे पाप का जो दंड है उसके लिए जो भी उसका मूल्य था और वैल्यू था वो भर दिया, ताकि हमें अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है उसके ऊपर। तो हम विश्वास किया तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम भी लाजरस जैसा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा मदद करता है,
ये बोल सकता है. ओके, ही वॉज कॉल्ड लैजरस बिकॉज गॉड हेल्प हिम. हम भी ऐसे ही इस दुनिया में बहुत कष्ट में जीवन बिता सकते हैं, लेकिन आनंद काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेगा, जिस जगह में हमारा दर्द और आंसू पहुंचा जाएगा. ओके, तो विद दैट आई विल एंड. अगर हमारे जीवन में हमने इस चीज किया नहीं है, विश्वास करने का यीशु मसीह को, और हमारा पाप का माफी नहीं हुआ है, तो हम प्रार्थना करके हमें हमारे जीवन उसके पास समर्पित कर सकता है, और वो हमें नया जीवन वो देगा. हमें कुछ अच्छा बनने का जरूरत है, हम अच्छा बन ही नहीं सकते. दो, हर नया साल जब भी शुरू होता है, मैं सोचता हूँ कि इस साल में बहुत अच्छा रहेगा. मैं ये लिखता हूँ कभी कभी डायरी में भी बैठ के कि ये चीज नहीं करेगा. 2 दिन 3 दिन होता है तो सब चीज में ऑलरेडी गिर चुका रहता है. ओके, सो हम अंदर से हम कुछ तय करके कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन को बदल सकता है, कायम के लिए, आनंद काल के लिए बदल सकता है. ओके, so we'll keep that in mind and pray. Okay, request Rakesh to